A very lovely good morning to all my dear students. Hope you all are good, fit and fine. And today we will start a new chapter of geography, and the name of the chapter is agriculture. In this chapter, first we introduction of agriculture. Two-thirds of Indian population is engaged in agriculture activities. Food grains are the most important agricultural products made in India. India exports agro products. Agro products means the products which are related to agriculture like tea, coffee, spices and many other products. Now, what is the importance of agriculture? Agriculture for decades had been associated with the production of basic foods crop. Basic foods means जैसे rice है, wheat है, these all are called the basic foods. At present, agriculture besides farming includes forestry, fruit cultivation, dairy product, mushroom, beekeeping and many others. Today, marketing, processing, distribution of agricultural products are all accepted as the part of modern agriculture. Thus, agriculture may be defined as the production, processing, marketing, distribution of crops and livestock products. Agriculture play a crucial role in the life of an economy. It is a backbone of the economic system. Agriculture not only provide the food and the raw materials but also employment opportunity to a very large proportion of population. अगर हम पुराने बात करते हैं बेटा तो पहले जो सेक्टर्स की भी अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में द पीपल्स आर मोस्टली इंगेज और हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड जो लोग थे वो किस में थे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लोग थे. Now the different types of farming, there are the 4 types of farming: primitive farming, intensive, commercial and plantation farming. First we discuss about the primitive subsistence farming. This is still practiced in India. This is practiced in a small plot of land with the primitive tools like hoe, hoe and digging stick. Primitive tools means जो पुराने ज़माने के tools चलते थे जैसे बोला गया हो है, डो है, डिगिंग है and it totally depends upon the monsoon and climatic conditions. It is also called a slash and burn agriculture. अगर आपसे क्वेश्चन आता है बेटा slash and burn agriculture हम किसे कहते हैं तो that is also called the primitive subsistence farming. Land production is low because farmers don't use fertilizers and other मॉडर्न इनपुट्स. यहाँ पर कोई भी मॉडर्न इनपुट्स यूज़ नहीं किए जाते हैं बेटा, सबके सब यहाँ पर पुराने के पुराने इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं. लेकिन अगर हम प्रिमिटिव फार्मिंग की बात करते हैं तो डिफरेंट नेम्स ऑफ स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, सब जगह अलग अलग नाम दिए गए. जैसे मेनली झूमिंग, अगर हम फार्मिंग कहते हैं झूमिंग फार्मिंग हम किसे कहते हैं तो हम बोल सकते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को ही हम झूमिंग फार्मिंग कहते हैं. मणिपुर में इसे पमोलो कहते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा, अंडमान निकोबार में दीपा, मध्य प्रदेश में दहिया, आंध्र प्रदेश में पेंडा, उड़ीसा में भृंगा, वेस्टर्न घाट में कुमारी, हिमालय में खिल, झारखंड में कुरुआ. वैसे ही वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं मैक्सिको में इसे मिल्पा, ब्राज़ील में रोको, वियतनाम में रे. ऐसे हम लोग इनको कई नाम देते हैं बेटा कि जिसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम प्रिमिटिव फार्मिंग को अलग अलग नाम बोलते हैं और मेनली इसका जो नाम है वो है झूमिंग एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं. नाउ द सेकंड वन इज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग. इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ द हाई पॉपुलेशन, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, लैंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है एंड इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. मतलब यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स काम नहीं करते, यहाँ पर लेबर को ही हायर किया जाता है. बायोकेमिकल इनपुट्स and irrigation are used for obtaining the higher प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से इनपुट्स यूज किए जाते हैं. नाउ द थर्ड वन इज द कॉमर्शियल फार्मिंग. हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, हायर डोजेस मतलब यहाँ पर जो हाई यील्ड सीड्स होती है इसको मेनली यूज़ किया जाता है. जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, चाहे वो थ्रेशर्स हैं, चाहे वो ट्रैक्टर्स हैं, इन सब का यूज़ ज़्यादातर कॉमर्शियल फार्मिंग में किया जाता है. द डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. कॉमर्शियल का मेनली मतलब होता है टू अर्न द प्रॉफिट और टू अर्न द मनी, दैट इज मेनली कॉल्ड द कॉमर्शियल फार्मिंग. एग्जाम्पल राइस, इस चीज का बेटा ध्यान रखना कि राइस इज द कॉमर्शियल क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या होता है, वीट होता है. लेकिन कॉमर्शियली के लिए टू अर्न द मनी वो लोग किस चीज का
प्रोडक्शन करते हैं, राइस का प्रोडक्शन करते हैं, बट सब्सटेंस क्रॉप इन उड़ीसा। लेकिन उड़ीसा में क्या है, राइस इज अ स्टेपल फूड, तो वहां पर नेचुरली लोग ऐसा ही राइस की ही प्रोडक्शन करते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। लगभग प्लांटेशन जो फार्मिंग है इसी के बारे में, और इसकी अगर डेफिनेशन आती है, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर? इट इज़ अ सिंगल क्रॉप ग्रोन इन अ लार्ज एरिया। एक ही एरिया में जब बहुत सारे क्रॉप्स लगा, एक ही जैसे क्रॉप्स को लगाया जाता है बेटा, दैट इज कॉल्ड द प्लांटेशन फार्मिंग। इट हैज़ एन interface of agriculture and industry, and it is done on the large tract of land using capital intensive inputs with the help of migrant labor। क्योंकि जो भी ये काम कर रहा है उसके लिए जो लेबर होता है ना, ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ट्री प्लांटेशन है, उसके लिए आपको नहीं मालूम है आपको कौन सी लीफ तोड़नी है, कैसे तोड़नी है, तो एक टेक्निक होती है इन चीज़ की। यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज, और ज़्यादातर ये इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल्स के लिए, और डायरेक्ट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप लाइक ऑरेंज है, शुगर केन है, कॉफ़ी है, एप्पल है, ठीक है। दिस ऑल आर द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।